resonance in series LCR circuit. The LCR series circuit has very large capacitive reactance. X is equal to 1 over C omega at low frequencies. Student, X is equal to 1 over C omega. If frequency is low, then X is large, and very large inductive reactance XL is equal to L omega at high frequencies. अगर ओमेगा ज़्यादा होगा तो XL क्या होगा, ज़्यादा. So at low frequencies capacitive reactance is large, and at very large frequencies inductive reactance is large. So at a particular frequency the total reactance of the circuit is 0. तेरा किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, 0. सो इफ XL इज इक्वल टू XC, जेड क्या था आपका LCR सर्किट का इंपीडेंस R² प्लस XL माइनस XC. एट लो फ्रीक्वेंसीज पे XC ज्यादा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है. एट हाई फ्रीक्वेंसीज पे XL लार्ज है. तो कह रहा है फिर हम Z को कैसे मिनिमम करेंगे, Z को कैसे मिनिमम करेंगे ताकि करंट क्या प्रोड्यूस हो सके ज्यादा. I इज इक्वल टू V ओवर Z. Z इज लो, then current flow through the LCR circuit is maximum. So when अब ये सारा परफेक्ट स्केयर है, नेगेटिव तो होगा नहीं कि इसको हम माइनस कर दें तो Z क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए. ये परफेक्ट स्केयर है, सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं. सो मैक्सिमम परफेक्ट स्केयर की वैल्यू क्या होगी, 0. सो व्हेन XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 means XL is equal to XC. That frequency is called resonant frequency. तब टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, XL minus XC. दिस इज द टोटल रिएक्टेंस. वो क्या होगी, 0. और इन दैट कंडीशन Z के आ गया R² प्लस XL माइनस XC, 0 स्क्वायर. R² का स्क्वायर रूट क्या हो गया R, Z के आ गया R. तो टोटल रिएक्टेंस 0. जो आपका LCR सीरीज सर्किट है वो क्या बन गया है, रेजिस्टिव सर्किट. क्या बन गया है, रेजिस्टिव सर्किट. एंड करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम. तो अंडर दिस कंडीशन इंपीडेंस Z आपका R बन गया और XL माइनस XC क्या आ गया, 0. ये 0 आ गया. तो Z इज इक्वल टू R² था, वो क्या बन गया R व्हेन XL इज इक्वल टू XC. एंड जो फ्रीक्वेंसी होगी ये वाली फ्रीक्वेंसी व्हेन XL इज इक्वल टू XC, L ओमेगा 1 over C omega. This frequency is called resonant frequency. This frequency is called resonant frequency. So at this frequency impedance of series LCR circuit is minimum. Z minimum हो गया आपका, क्या आ गया R के बराबर, and is equal to R. and current क्या हो गया, maximum. current क्या हो गया, because I is equal to V by Z. Z minimum हो गया is equal to R. when total reactance 0, करंट क्या हो गया, करंट फ्लो करेगा सीरीज LCR सर्किट में मैक्सिमम. ठीक है सर. एंड सर्किट बिहेव्स रेजिस्टिव, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए resonant frequency. This frequency is called resonant frequency of LCR circuit when current is maximum and impedance is minimum and circuit behaves a resistive circuit at resonant frequency. This is important topic. ठीक है स्टूडेंट. The resonance XL minus XC is equal to 0 means L omega is equal to 1 over C omega. Omega square क्या आ गया, 1 over LC. and omega क्या आ गया, 1 over LC का square root. this one omega क्या आ गया, angular frequency क्या आ गई, 1 over square root of LC. and omega क्या है, 2 pi FR, where FR is a resonant frequency. and resonant frequency क्या आ गई, 1 over 2 pi square root of LC. and this is the important formula for your MCQs. The resonance frequency at this frequency, when source of frequency FR, when AC source of frequency at FR, this is the inductor, this is the capacitor, this is the resistor.
this is a source of EMF. E is equal to E naught sine omega t. If omega is 1 over square root of LC, then current flow through this LCR circuit is maximum, and impedance minimum, and reactance 0, and circuit behaves resistive circuit at resonant frequency, and this phenomenon is called resonance of series LCR circuit. So these are the current versus frequency graph. तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये देखिए फ्रेंड, करंट क्या है मैक्सिमम, करंट क्या है मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं, ये क्या है डिफरेंट रेजिस्टेंसेज। अब जेड आपका क्या बन गया है आर, और जो आई होगा वो क्या होगा वी बाई जेड मीन्स वी बाई आर। अगर आपका आर कम होता जाएगा तो ये करंट क्या होता जाएगा ज़्यादा, बट ओनली एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पीक आ रही है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस क्या है R1 मैक्सिमम, तो ये करंट क्या है मिनिमम। देखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है करंट क्या है कम, ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है करंट कम। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होती जा रही है करंट क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। R2 की रेजिस्टेंस कम है तो IO2 ज़्यादा है, R3 की रेजिस्टेंस और कम है तो करंट और ज़्यादा आ गया। बट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा करंट क्या है कम। ओनली पीक कहाँ पे आ रही है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट। तो द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कर्व ऑफ LCR सर्किट इज शोन इन फिगर। ये फिगर रही आपकी, इट शोज मैक्सिमम करंट कहाँ पे हो रहा है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR, एंड करंट ओनली डिपेंड्स ऑन आई, किसके ऊपर अब डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट इंक्रीज होगा। ये देखिए करंट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम हो रही है। बट पीक कहाँ पे आ रही है करंट की पीक ओनली एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो इन केस ऑफ LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या हमने पढ़ा, XL इज इक्वल टू XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL माइनस XC 0 मीन्स रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज 0। Z इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला R स्क्र प्लस XL माइनस XC स्क्र, और ये 0 हो गया तो R स्क्र का स्क्र रूट R आ गया, Z क्या बन गया R, एंड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम एंड इज इक्वल टू क्या आ गया रेजिस्टेंस। Impedance of LCR series circuit is resistance, and this LCR circuit behaves this LCR series resonant circuit behaves a resistive circuit। तो IM क्या हो गया VM over ZX होता है, Z की जगह क्या आ गया R, and current in the circuit क्या होगा maximum। These are the important points for your MCQs। This series resonant circuit is called acceptor circuit। तो क्या बोलेंगे जो आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट है स्टूडेंट वो क्या है एक्सेप्टर सर्किट। अब एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलेंगे, दिस सर्किट इज यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी। वी रिसीव द डिजायर्ड स्टेशन बाय मेकिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इक्वल टू दैट ऑफ डिजायर्ड स्टेशन फ्रीक्वेंसी बाय वेरिंग कैपेसिटेंस व्हिच गिव्स रेजोनेंस कंडीशन। अब स्टूडेंट FR की वैल्यू क्या है 1/2 पाई LC। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये आपका एंटीना है, यहाँ पे काफ़ी सारी सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है CTV MTV कलर्स। अब आप चैनल चेंज करते हो तो जो चैनल पर्टिकुलर चैनल आता है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का चैनल आता है उसी पे वो चैनल चलता है। इसका मतलब जो आप रिमोट कंट्रोल से चेंज कर रहे हो वो क्या चेंज कर रहे हो कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हो। जब कैपेसिटेंस चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल आपका FM है, ठीक है रेडियो मिर्ची है 98.3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है आपने रिमोट कंट्रोल से फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और 98.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अब स्टूडेंट वही वाला चैनल अब उस चैनल के लिए
जेड क्या हो गया, मिनिमम। इस चैनल की फॉर एग्जांपल एफएम रेडियो मिर्ची की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है 98.3, लेकिन आपके रेडियो स्टेशन में 98.3 अभी फिलहाल नहीं है, तो आपने कैपेसिटेंस को चेंज किया अपने रिमोट कंट्रोल से। तो जैसे ही कैपेसिटेंस को चेंज किया, इंडक्टर की वैल्यू फिक्स है, कॉइल आपकी फिक्स है, जैसे ही आपने इसको चेंज किया, वेरी किया, फ्रिक्वेंसी एंटीना की क्या हो गई, एफ आर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। जैसे ही एंटीना की फ्रिक्वेंसी एफ आर हुई, जेड क्या हो गया, मिनिमम। जेड मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। ये वाली वेव आपके एंटीना के अंदर एंटर कर जाएगी और आपका जो रेडियो स्टेशन है वो ये वाली फ्रिक्वेंसी को कैच कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए एक्सेप्टर सर्किट। फ्रिक्वेंसीज बहुत सारी हैं, सिग्नल्स बहुत सारे हैं, एनवायरनमेंट में सिग्नल्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपका जो रेडियो स्टेशन है वो कौन सा सिग्नल पकड़ेगा, जब इस एंटीना का इम्पीडेंस क्या होगा, कम। इस एंटीना का इम्पीडेंस कब कम होगा, जब XL इज इक्वल टू XC, मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे, क्योंकि जो आपके सिग्नल्स हैं एनवायरनमेंट में उन सब की कोई ना कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है। अगर आपके एंटीना की फ्रिक्वेंसी एक्सेप्ट करने की वो वाली होगी, तभी ये सिग्नल एंटर करेगा आपके रेडियो स्टेशन में, अदरवाइज एंटर नहीं करेगा। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे लेके आने के लिए आपका रेडियो स्टेशन क्या चेंज करेगा, कैपेसिटेंस चेंज होगी, कभी ना कभी आपका सर्किट जो एचसीएल सर्किट है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे आ जाएगा। जिस जोन सी फ्रिक्वेंसी होगी, आपने सी चेंज किया, जोन सी फ्रिक्वेंसी होगी वो वाला सिग्नल आपके जीटीवी हो, एमटीवी हो, कोई भी हो, वो आपके एंटीना के अंदर एंटर कर जाएगा और ये रेडियो स्टेशन आपका सिग्नल एक्सेप्ट कर लेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है स्टूडेंट। मतलब एट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, दिस इज ए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, दिस इज ए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे करंट क्या हो गया, मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम हो गया, और वो वाला सिग्नल करंट मैक्सिमम हो गया, वो वाली वेव आपके रेडियो स्टेशन में क्या हो गई है, एंटर कर गई है। क्यों, क्योंकि जो आपका एंटीना है उसका एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब इंपीडेंस कम होगा तो ऑब्वियस है करंट मैक्सिमम होगा, सिग्नल एंटर करेगा। एंड दीज आर द फ्रिक्वेंसी रेंजेस, एफएल लोअर फ्रिक्वेंसी, एफएच हायर फ्रिक्वेंसी, एट विच स्टूडेंट ये गेन है, आपके सर्किट का गेन है -3 dB, मतलब डेसिबल कम हो गया। और कितना हो गया करंट, 0.707 आई मैक्स। जब मैंने क्या कहा था, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी कम होगी तो भी करंट कम होगा, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो भी करंट कम होगा। ओनली एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे ही करंट मैक्सिमम होगा। अब जब करंट 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाए, जोन सी फ्रिक्वेंसी है, दैट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ, दैट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ। आप अपने रेडियो में फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हो तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे तो सिग्नल प्रॉपर एंटर कर जाता है, कई बार किसी फ्रिक्वेंसी पे प्रॉपर सिग्नल एंटर नहीं करता, तो वो वाली आपकी क्या है, बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ क्या डेफिनेशन है, बैंडविड्थ इज दैट फ्रीक्वेंसी रेंज एट विच करंट इज 0.707 ऑफ मैक्सिमम करंट, मीन 70.7% of I max. That frequency range is called bandwidth. Lower to higher. Resonant curve and Q factor. ठीक है स्टूडेंट। तो बैंडविड्थ हमें पता लग गया, ये बैंडविड्थ है, ये मैक्सिमम है, यहाँ से करंट क्या आ रहा है 70.70, और ये क्या आ गई आपकी बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये लोअर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट। क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ। So ratio of resonant frequency to bandwidth is called quality factor. तो क्या आ गया, resonance frequency to bandwidth is called quality factor. It can also be defined as the ratio of potential drop across either the inductance or the capacitance to the potential drop across resistance. Means potential drop across inductance to potential drop across resistance, or potential drop across capacitance to potential drop at resistance,
इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। कि सिग्नल आपका जो रेडियो स्टेशन है वो सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो क्वालिटी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्यू क्या आ गया, वी एल ओवर वी आर और वी सी ओवर वी आर। एंड ये तो डेफिनेशन थी, ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। और स्टूडेंट इसको सॉल्व कीजिए जरा, वी एल ओवर वी आर। वी एल क्या है, आई एक्स एल। वी आर क्या है, आई आर। आई आई क्या हो गई, कैंसल। एक्सएल का आ गया एल ओमेगा। और क्वालिटी फैक्टर कहाँ पे है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे, एल ओमेगा आर ओवर आर। ये रहा, ठीक है स्टूडेंट, ये क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला आ गया। और दूसरा, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या इज इक्वल टू बी सी ओवर वी आर। बी सी क्या है, आई एक्स सी। वी आर क्या है, आई आर। आई आर क्या हो गया, कैंसल आई आई। और एक्सी क्या है, 1 ओवर सी ओमेगा। और ये 1 ओवर आर। और ये ओमेगा क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ग्राफ है, ये आपको मैंने समझा दिया है। ये करंट है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये पीक कहाँ पे आएगी, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस R1 की कर्व थी और ये रेजिस्टेंस R2 की कर्व है और ये रेजिस्टेंस R3 की कर्व है। तो R1 इज लेस देन R2 लेस देन R3। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, मैक्सिमम ऑफ करंट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। दिस इज द पीक ऑफ करंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, बिकॉज in LCR circuit at resonance impedance is equal to R, only depends on resistance, and as the resistance decreases, peak of current is increases. Peak of current, this is the peak, I naught max, this is the I naught max by 2 means 0.707 of I max। जहाँ पे क्या होगी, ये क्या बैंडविड्थ, जहाँ पे करंट आई नॉट मैक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, वो क्या होगा, बैंडविड्थ। एंड दिस इज द बैंडविड्थ, दिस इज द ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, दिस इज ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। और बैंडविड्थ निकालिए, क्या आ जाएगा, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। और क्या आ गई बैंडविड्थ, 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट। So this is the omega r minus delta omega, this is the omega r plus delta omega। और ठीक है स्टूडेंट। So MCQs in series resonant circuit, to increase the resonant frequency, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट क्या करोगे। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एल एंड सी के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। क्या आंसर होगा, LC have to be decreased because resonance frequency depends only on inductor and capacitor। तो अगर LC डिक्रीज होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन LCR ऐसी सर्किट एट रेजोनेंस करंट, तो स्टूडेंट करंट क्या आ गया, Z क्या बन गया, R tan फाई क्या था, XL माइनस XC ओवर R। और रेजोनेंट सर्किट में XL माइनस XC क्या है, 0 ओवर R। तो पाई क्या आ गया, 0 डिग्री, बिकॉज रजिस्टिव सर्किट में करंट एंड EMF आर इन सेम फेज, तो पाई क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सो द करंट इज ऑलवेज इन फेज विद द वोल्टेज इन सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस। ये भी कंडीशन है, ट्यूशन में नहीं की, अब मैंने आपको समझा दिया है। इन सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस, करंट एंड EMF, करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज और EMF आर इन सेम फेज, मींस फेज डिफरेंस कितना आ गया, 0 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।